Hello friends, in my last video I have discussed some questions of NIMSET 2018. In this video I will be discussing some questions of 2017 and 2016 NIMSET. My first question is question number 34 of NIMSET 2017. This is a very simple question of permutation and combinations. इसमें जो डेटा हमें दिया हुआ है बोल रहा है 7 मेल्स आर देयर एंड 6 फीमेल्स आर देयर और मुझे एक कमिटी बनानी है जिसमें 5 लोग होने चाहिए. 5 पीपल शुड बी देयर इन द कमिटी एंड विद द रेस्ट्रिक्शन दैट नंबर ऑफ मेल्स शुड बी मोर देन नंबर ऑफ फीमेल्स. मतलब जो मेल्स हैं वो फीमेल से ज्यादा होने चाहिए. तो आउट ऑफ 5 पर्सन्स आई कैन हैव 5 मेल्स and 0 females, 4 males, 1 female, 3 male and 2 female. एक और कंडीशन ले सकते हैं कि 2 मेल और 3 फीमेल, मगर वो कंडीशन मेरे इस कंडीशन को वायलेट करेगी where it is given कि number of males should be more than number of females. So if I am taking 5 males out of 7 males, तो mathematically it is 7C5. So I am selecting 5 males out of 7 males. Then I need 0 female out of 6 females. So mathematically it is 6C0. 4 males out of 7 males. The second condition is 7C4 multiplied by 6C1. And third condition is 7C3 because I am selecting 3 males out of 7 males. And 6C2. Because I am selecting 2 females out of 6 females. This situation, this condition and this condition should be added because there is a case of or. Either this can be done or this can be done or this can be done. It means I have to add all these. Adding all these things, I will get 756. So my answer will be 756. आप इसको नोट कर लीजिए. My next question is again a very easy question. This is question number 37 of NIMSET 2017. In this question, 99, 90, 83, 78. 4 numbers are given. The following series is obtained by considering representation of decimal 99 in different number system. मुझे एक नंबर दिया हुआ है 99 जो डेसिमल सिस्टम में है, उसको मैं दूसरे सिस्टम्स में कन्वर्ट कर रहा हूं. आप लोगों ने नंबर सिस्टम्स पढ़ रखा होगा. तो 99 को आई एम कन्वर्टिंग इन डिफरेंट नंबर सिस्टम्स. तो इफ आई एम कन्वर्टिंग 99 इन डेसिमल सिस्टम इट विल बी 99. Here you can see 99 is written. The next number is 90. It means I have converted 99 in some bigger base. So if I convert 99 into 11 base, you have to divide 99 by 11. 11 9s are 99 and that comes to 0. My answer will be 90. It means this is in decimal base, this is in base 11. If I convert 99 in base 12, so I have to divide it by 12. (99) divided by 12. 12, 8 ja 96, remainder is 3. So my answer will be 83. So it is clear that this is base 10. This is base 11, this is base 12, definitely it will be base 13, it will be base 14, it will be base 15. So if I convert 99 in base 14, 99 divided by 14, 14 7s are 98, remainder is 1. So my answer will be 7 1. If I convert 99 in base 15,
So 99 divided by 15. Answer will be 69. So next two numbers will be 71 and 69. My next question is question number 48 of NIMSET 2017. ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को मैंने कई बार देखा है अलग अलग पेपर्स में अलग अलग स्टोरीज के साथ. इन दिस क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि एक 6x4 का ग्रिड है, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे. फाइंड नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन अ ग्रिड ऑफ 6x4. इसे करने से पहले कुछ चीजें समझते हैं. बहुत पहले क्वेश्चन आया था फाइंड नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन अ चेस बोर्ड. एक पेपर में क्वेश्चन आया. आपको पता है कि जो चेस बोर्ड होता है उसमें 8x8 कॉलम्स होते हैं, राइट. सो लेट्स मेक अ चेस बोर्ड. Now you can see I have made a chessboard with 8x8 grid, or you can say it is a 8x8 grid. The question is number of squares in a chessboard. इस टोटल फिगर में कितने स्क्वायर्स हैं. बुक्स में कई सारे अलग अलग फॉर्मूलाज दिए हैं. फॉर्मूलाज में जाने की जरूरत नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. मुझे यहां पर 64 स्क्वायर्स दिखाई पड़ रहा है. ये सारे जो स्क्वायर्स होंगे इनका साइज होगा 1/1 और टोटल स्क्वायर्स होंगे 8 into 8, दैट कम्स टू 64. Why 8 into 8? 8 horizontal, 8 vertical. So number of squares will be 8 into 8, that comes to 64. 1 2 10 9 ये भी एक स्क्वायर है. 1 2 10 9 इट्स अगेन अ स्क्वायर. स्क्वायर ऑफ साइज 2/2. So 2 3 10 11 दिस इज ऑल्सो एन स्क्वायर. 3 4 12 11 ये भी स्क्वायर है. 4 5 13 12 ये भी स्क्वायर है. स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर. So you can see there are total 7x7 squares of size 2/2. Length 2, breadth 2, size is 2/2, and total number of squares are 7 into 7, that comes to 49. 1 2 3 11 19 18 17 9. This is also a square, or you can say here this is also a square with size 3/3. So 3/3. This is a square. This is also a square. This is also a square. This is also a square. A square and a square. Total 6 square horizontally. So 6 horizontal, 6 vertical. So total square 6 into 6. That comes to 36. Now you can see a pattern. 1 into 1, 8 into 8, 2 multiplied by 2, 7 into 7, 3/3 size, 6/6. तो 4/4 साइज के 5 into 5 दैट कम्स टू 25 स्क्वायर्स होंगे. 5 into 5 साइज के 4 into 4 दैट कम्स टू 16 स्क्वायर्स होंगे. 6 multiplied by 6, 3 into 3 दैट कम्स टू 9. 7 multiplied by 7 दिस साइज. देखो ये भी एक स्क्वायर है. 7/7. तो ऐसे कितने स्क्वायर्स होंगे? 2 into 2 दैट कम्स टू 4. 8/8. 1 into 1 दैट कम्स टू 1. दिस बिग फिगर इज ऑल्सो एन स्क्वायर. तो टोटल स्क्वायर इज 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 +
49 प्लस 64 दैट कम्स टू 204। तो एक स्क्वायर, एक चेस बोर्ड में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे? 204 हो जाएंगे। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं, जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। माय क्वेश्चन वाज देयर इज अ ग्रिड ऑफ 6/4 2 3 4 यहां पर कितने स्क्वायर्स होंगे ये मुझसे पूछ रहा है। 1 2 3 4 5 6। तो अगर 1/1 साइज के स्क्वायर्स की बात करें तो 1/1 साइज के स्क्वायर्स होंगे 6 मल्टीप्लाइड बाई 4, 6 हॉरिजॉन्टल एंड 4 वर्टिकल, दैट कम्स टू 24। One, 2, 8, 7, this is again a square. 2, 3, 8, 9 is also a square. ये भी स्क्वायर है, ये भी है और ये भी है। 1 2 3 4 5। तो 2/2 साइज के स्क्वायर्स होंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, 5 1 2 एंड 3, 5 हॉरिजॉन्टल एंड 3 वर्टिकल, दैट कम्स टू 15। 3/3 साइज 4 इंटू 2, पैटर्न क्लियर है। 6 5 आपकी क्या होगा? 4 हो जाएगा, दैट कम्स टू 8। 4 इंटू 4 साइज 6 5 4 3, 4 3 2 1, आंसर विल बी 3। तो 4/4 साइज के जहां पर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट कम्स टू 3, इसका मतलब 3 स्क्वायर्स होंगे। देखते हैं, A B C D E F G K L M N J P R, A E J K is a square, size 4/4. B F P L is again a square. C G R N M is also a square. So there are total 3 squares of the size 4 into 4. So total number of squares will be 24 plus 15 plus 8 plus 3. That comes to 50. इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ जो स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे? 50 स्क्वायर्स हो जाएंगे। 50 ऑप्शन हियर गिवन इज 51, दैट इज रॉन्ग, द आंसर मस्ट बी 50। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का यही तरीका होता है जो मैंने आपको बताया। कभी कभी इन क्वेश्चंस में आपसे पूछता है फाइंड नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन अ चेस बोर्ड और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन दिस काइंड ऑफ ग्रिड। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस अलग अलग पेपर्स में पूछे जाते हैं। पुणे एमसीए में भी आया है, जेएनयू एमसीए में भी आया है, इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो स्क्वायर्स को तो हम लोगों ने इस तरह से काउंट किया, अगर ऐसे हम रेक्टेंगल्स को काउंट करने लगेंगे इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। व्हाई इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम? ट्राई एंड अंडरस्टैंड। दिस इज अ वेरी स्मॉल ग्रिड 4/4। अगर मैं पूछूं आपसे कि इसमें कितने रेक्टेंगल्स होंगे, वही काम करते हैं, नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। एक कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में और भी रहता है कि जब है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स काउंट कर रहा हूं तो स्क्वायर्स जो हमने काउंट किए हैं उन्हें कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे। डेफिनेटली करेंगे, बिकॉज एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। हर स्क्वायर जो है वो एक रेक्टेंगल है, मगर हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है। तो उसने मुझे क्या बोला है कि मुझे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स चाहिए, तो जो भी हमने स्क्वायर्स काउंट किए हैं वो भी उसके अंदर आएंगे। स्क्वायर रेक्टेंगल का वो स्पेशल केस है जिसका लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। यहां आते हैं, ये एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल भी है, ये भी एक रेक्टेंगल है, फिर ये 1 2 3 भी एक रेक्टेंगल है, 1 2 3 4 भी एक रेक्टेंगल है, 1 5 एक रेक्टेंगल है, 1 5 9 भी एक रेक्टेंगल है। ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल्स हो जाएंगे, हम काउंट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सहारा लेंगे। बहुत सिंपल है, देखिए, अगर मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? एक रेक्टेंगल के लिए मुझे 4 लाइन्स चाहिए,
2 हॉरिजॉन्टल एंड 2 वर्टिकल। अगर मैं सिर्फ बोलूं कि मुझे रेक्टेंगल के लिए 4 लाइंस चाहिए तो वो गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 4 लाइंस हैं, इनसे कोई रेक्टेंगल नहीं बन सकता, मगर 2 वर्टिकल लाइंस एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइन विल क्रिएट अ रेक्टेंगल। तो ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड 2 वर्टिकल लाइंस। यहां देखते हैं 1 2 3 4 5। आई हैव 5 वर्टिकल लाइंस। 1 2 3 4 5। आई हैव 5 हॉरिजॉन्टल लाइंस। सो एक रेक्टेंगल बनाने के लिए मुझे 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस चाहिए और 2 वर्टिकल लाइंस चाहिए। तो आउट ऑफ 5 हॉरिजॉन्टल लाइंस आई नीड 2 लाइंस एंड फॉर आउट ऑफ 5 वर्टिकल लाइंस आई नीड 2 लाइंस। तो 5c2 एंड 5c2। 5c2 मल्टीप्लाइड बाई 5c2। 5c2 का वैल्यू होता है 10, 10 इंटू 10 दैट कम्स टू 100। इसका मतलब इस 4x4 की ग्रिड में टोटल 100 रेक्टेंगल्स होंगे। तो हम अपने उसी क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर 6x4 का ग्रिड है और मुझसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे। 1 2 3 4 5। आई हैव 5 हॉरिजॉन्टल लाइंस। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 7 वर्टिकल लाइंस। तो आउट ऑफ 7 वर्टिकल लाइंस आई नीड 2 लाइंस, 7c2। and out of 5 horizontal lines I need 2 horizontal lines. So 5c2 multiplied by 7c2 will be my answer. This will be number of rectangles. And next question is question number 50 of NIMSET 2017. ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कई बार अलग अलग स्टोरीज के साथ में मैंने इसको अलग अलग पेपर्स में देखा है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है देयर आर 3 थीव्स। 3 थीव्स हैं जो एक बेकरी में चोरी कर रहे हैं। तो पता नहीं कौन से थीव्स होंगे जो बेकरी में चोरी कर रहे होंगे। तो खैर जो भी है क्वेश्चन में है तो है। 3 थीव्स हैं जो बेकरी में चोरी कर रहे हैं और हर बार ये चोरी क्या करते हैं, हाफ ऑफ द ब्रेड्स जो वहां पे हैं प्लस हाफ। मतलब अगर वहां पे 10 ब्रेड्स हैं तो ये हाफ मतलब 5 चोरी करेंगे और साथ में हाफ और चोरी करेंगे। दिस इज व्हाट द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 थीव्स हैं जो बार बार चोरी करते हैं और हर बार कितना चोरी करते हैं, जो भी ब्रेड्स वहां पे हैं उनका हाफ प्लस हाफ ऑफ द ब्रेड। सो इफ आई से देयर वर 7 ब्रेड्स, तो हाफ का मतलब हुआ वो चोरी करेगा 3.5 और प्लस हाफ और चोरी करेगा 0.5। इसका मतलब वो 4 ब्रेड्स को चोरी कर लेगा और वहां पर कितनी ब्रेड्स बचेंगी, 3। फाइनली बोल रहा है क्वेश्चन में कि लास्ट में कितनी ब्रेड्स बचती हैं, 3। तो मुझे बताना यह है कि टोटल नंबर ऑफ ब्रेड्स कितनी है। करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को। पहला तरीका हो सकता है कि मैं इसको अलजेब्रा के तरीके से करूं। सो अगर नंबर ऑफ ब्रेड्स x थी और चोर ने आधी ब्रेड्स चोरी कर ली तो बचेंगी कितनी ब्रेड्स, x/2। इसके बाद उसने हाफ ब्रेड और चोरी करी तो वहां पर बचेगा कितना, x/2 माइनस हाफ। दूसरा जब चोर आएगा तो वो इसका हाफ चोरी करेगा और साथ में हाफ और चोरी करेगा तो ब्रेड कितना बचेगा, हाफ ऑफ दिस माइनस हाफ। तीसरा चोर क्या करेगा, वो भी सेम प्रोसेस करेगा। अगर प्रोसेस सेम है तो इक्वेशन भी सेम बनेगी। और फाइनली 3 ब्रेड्स आर लेफ्ट। इसको सॉल्व करने के लिए इस पूरे को सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सा एक काम कीजिए, हाफ को उधर ले जाइए, इट विल बी 3.5। हाफ यहां से जाकर यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा
तो हाफ ऑफ x बाई 2 माइनस हाफ इज इक्वल टू 3.5 इंटू 2, दैट कम्स टू 7. अगेन हाफ वहां जाकर ऐड हो जाएगा, तो हाफ ऑफ x बाई 2 माइनस हाफ इज इक्वल टू 7.5. 2 वहां जाकर मल्टीप्लाई होगा, आई एम सॉल्विंग इट हेयर, तो x बाई 2 माइनस हाफ इज इक्वल टू 7.5 इंटू 2, दैट कम्स टू 15. सो x बाई 2 is equal to 15.5, x is equal to 31. My answer will be 31. इस क्वेश्चन करने का एक बड़ा सिंपल तरीका हो सकता है कि आखिर में यहां पर 3 ब्रेड्स बच रही हैं. अगर ये बंदे क्या करते हैं, जितने भी ब्रेड्स वहां पे हैं उनमें से हाफ चोरी कर लेते हैं और हाफ और चोरी कर लेते हैं. तो अगर इस बंदे ने हाफ नहीं चोरी किया होता तो यहां पर ब्रेड्स कितनी होनी चाहिए थी, 3.5. और ये 3.5 ब्रेड्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ ब्रेड्स का हाफ. इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ब्रेड्स यहां पर कितनी रही होंगी, 7, जब तीसरे चोर ने चोरी करी है. तीसरे चोर ने क्या किया है, टोटल नंबर ऑफ ब्रेड्स का हाफ चोरी किया है और हाफ और चोरी किया है. अगर वो हाफ चोरी नहीं करता तो कितनी ब्रेड्स होती, 7.5. और 7.5 क्या है, टोटल नंबर ऑफ ब्रेड्स का हाफ है. इसका मतलब जब सेकंड चोर ने चोरी की है तो ब्रेड्स कितनी रही होंगी, 15. इससे पहले चोर ने क्या किया, टोटल ब्रेड्स का आधा चोरी किया है और साथ में हाफ ब्रेड और चोरी की है. तो अगर ये हाफ ब्रेड नहीं चोरी करता तो ब्रेड्स होती 15.5 और ये टोटल नंबर ऑफ ब्रेड्स का कितना है, हाफ. इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ब्रेड्स कितनी रही होंगी, 31. सो माई आंसर विल बी 31. आपको अलजेब्रा की जरूरत नहीं है, आप इसको बिना अलजेब्रा के भी सॉल्व कर सकते हैं. माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50 ऑफ निमसेट 2017. In this question, it is given that there is a caterpillar which is climbing up on a pole which is 75 inches. It is climbing up 5 inches in a day and every night it slips down 4 inches. So, it is very simple. Every day it climbs up 5 inches and every night it slips down 4 inches, so result is 1 inch. So every day it will scroll up 1 inch. तो एक दिन में 1 इंच ऊपर चढ़ के जाएगा, ये इसका रिजल्टेंट होगा. दिन में ऊपर चढ़ रहा है 5 इंच, रात में 4 इंच स्लिप करके नीचे आ रहा है, तो रिजल्ट जो मुझे मिल रहा है वो 1 इंच हो रहा है. कई सारे लोग बोलेंगे एक दिन में द रिजल्ट इज 1 इंच, सो 75 इंचेस चढ़ने में उसको 75 डेज लगेंगे, विच इज रॉन्ग आंसर. एक दिन में 1 इंच चढ़ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि 68 डेज में ये 68 इंचेस चढ़ जाएगा. 69 डेज में 69 इंचेस चढ़ जाएगा. 70 डेज में 70 इंचेस चढ़ जाएगा. 71st डे क्या होगा, ये एक दिन में 5 इंच ऊपर जाता है, इसका मतलब ये कहां पहुंच जाएगा, 75 इंचेस पे पहुंच जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि 75 इंचेस चढ़ने में उसको 71 डेज लगेंगे. Next question is question number 52 of NIMSET 2017. In this question, it is said that एक बंदे का जो भी इन्वेस्टमेंट है वो 5 इयर्स में डबल हो जा रहा है और ये बंदा 90 में, 95 में, 2000 में, 2005 में
5-5 हजार रुपए जमा करता है। 2010 में उसे कितने पैसे मिलेंगे? दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। 90 में ही इज डिपॉजिटिंग 5,000 रुपीज, सो 95 में he will get 10,000 rupees and he is investing 5,000 more. So now his investment is 15,000 rupees. In 2000 he will get 30,000 rupees because 15,000 rupees है और ये डबल होके कितना हो जाएगा 30,000 rupees and he is investing 5,000 more. So now the money is 35,000. In 2005 he'll get 70,000 rupees. Why 70,000? Because उसका इन्वेस्टमेंट कितना है 35,000, डबल होके कितना हो जाएगा 70,000 हो जाएगा. Now again he is investing 5,000 rupees, so it will be 75,000. In 2010 he will get 1,50,000 rupees. 75,000 का डबल 1,50,000 रुपीज, और अब यहां पर वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, तो 2010 में ही विल गेट 1,50,000 रुपीज. My next question is question number 59 of NIMSET 2017. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आराम से देखिए. बोल रहा है जॉन इज 20 ईयर्स ओल्डर देन स्टीव. जॉन जो है वो स्टीव से 20 ईयर्स बड़ा है. सिंपल. इन 10 ईयर्स स्टीव्स एज विल बी हाफ ऑफ द जॉन्स. तो स्टीव की एज अगर s है तो जॉन की एज जो हो जाएगी वो s+20 हो जाएगी. जॉन इज s+20. जॉन 20 ईयर्स बड़ा है. 10 साल के बाद स्टीव की एज हो जाएगी s+10 और जॉन की एज हो जाएगी s+20 + 10, दैट कम्स टू s+30. s+10 एंड s+30. और बोल रहा है 10 ईयर्स के बाद जो स्टीव का एज होगा वो जॉन के एज से हाफ हो जाएगा. तो s+10 इज इक्वल टू s+30/2, हाफ हो जाएगा. तो 2s+20 इज इक्वल टू s+30. s इज इक्वल टू 30 - 20, दैट कम्स टू 10. इसका मतलब आज की डेट में स्टीव का एज जो है वो 10 ईयर्स है और जॉन का एज जो है वो 30 ईयर्स है. ये पूरा सॉल्व करने की बजाय हम यहां पर ऑप्शन डाल के भी देख सकते थे कि s = 10 के अलावा और कोई कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई नहीं करेगी. 10 + 10 is 20, 10 + 30 is 40/2, again 20. So my answer will be s = 10. Question number 61 of NIMSET 2017. सिंपल क्वेश्चन है, सीरीज पर बेस्ड है. पूछ रहा है नेक्स्ट दो नंबर्स क्या होंगे. लेट्स फाइंड आउट द पैटर्न ओवर हियर. 2, 4, 12, 24, 72. Here I am multiplying by 2. Then 4 is being multiplied by 3. 12 multiplied by 2 is 24. Multiplied by 3 is 72. Clear है. अगली बार जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो 2 से होगा. तो my answer will be 144. नेक्स्ट टाइम जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो 3 से होगा. My answer will be 432. Question number 68 of NIMSET 2017. 61, 57, 50,
61, 43, 36, 61। सिंपल क्वेश्चन है, सीरीज पर बेस्ड है। मुझसे पूछा है नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या होंगे सीरीज में। इस सीरीज में देखें तो यहां पर 3 सीरीज चल रही है, 61, 61, अगेन 61। ठीक है, इसका मतलब इसके बाद भी जो टर्म आएगा वो क्या होगा, 61 होगा। 57, 43, 14 का डिफरेंस है। तो अगला जो टर्म आएगा उसमें भी 14 का डिफरेंस होना चाहिए। इसका मतलब वो नंबर हो जाएगा 29। 50 एंड देन 36, अगेन -14। तो जो अगला टर्म होगा उसमें भी -14 होना चाहिए। इसका मतलब वो आंसर हो जाएगा 22। तो माय आंसर्स विल बी 29 एंड 22।